Hello everyone and welcome to today's webinar cum podcast. I am Pooja from Franchise Discovery, your trusted business partner in exploring franchise opportunity across the India. So today I am super excited to introduce the brand 99 Pancake. आज हमारे साथ 99 Pancake से मिस्टर देव जी हैं। देव जी आज हमें एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द फ्रेंचाइजी स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट डिटेल और कैसे आप इस फास्ट ग्रोइंग ब्रांड का हिस्सा बन सकते हैं। वेदर यू आर अ एक्सपीरियंस बिजनेस ओनर या फिर आप कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो दिस सेशन विल गिव यू ऑल द की इंफॉर्मेशन. So, Mr. Dev, a warm welcome to our session and thank you so much for joining us today. Dev जी हमें बताएंगे about your journey और 99 Pancake में आपका ये सफर कैसे स्टार्ट हुआ? So as I was saying, I heard your question. As I was saying that we started our journey with 99 Pancakes in the year 2017, and now we have reached 85 outlets, and we are present in 17 cities. So the journey has been very good. We had a small blip in between with COVID coming in, but that made us more stronger and more confident with our brand because we survived that tide also. So yeah, it's been a good journey so far, and we are ready to kind of move ahead stronger and faster also. Great. Thank you so much, Dev sir. So No. अभी 99 पेनकेक की अगर हम लोग बात करें तो ये एक ऑलरेडी हाउस होल्ड ब्रांड बन चुका है, तो Right. आप इसे कैसे डिस्क्राइब करेंगे मार्केट में? सो बेसिकली हमने जो यहाँ पे इंडिया में फर्स्ट टाइम मिनी पैनकेक्स जो प्रॉफी जेट्स बोलते हैं उनको हमने इंट्रोड्यूस किया इन द इंडियन मार्केट वेयर waffles are very popular at that time, and this is something that was unheard of in the Indian market with a vegetarian option basically. So आप pancakes generally with egg ही होता है, तो ये हमारा यूएसपी था और हमको इंडियन पैलेट के हिसाब से हमको उनको केटर करना था और एक अच्छा डेजर्ट लाना था जो थोड़ा मिसिंग था फिलहाल, बिकॉज आइसक्रीम एज अ कैटेगरी बहुत पॉपुलर था, बट अभी जैसे जैसे मिलेनियल्स आ रहे हैं और सारे जो यूथ हैं उनको थोड़ा डेजर्ट मतलब ऐसा चाहिए कि जो फ्रेशली मेड हो, उनके सामने बन रहा हो or vegetarian of course. So that is how basically our concept was that we want to bring in something in the desert space which is freshly made in front of the customer and is a vegetarian option. So अभी जैसे आपने ऑलरेडी बोला कि आपका 70 सिटीज में 85 आउटलेट चल रहा है, ऑपरेशनली रनिंग है अभी आउटलेट? Yeah, सारे operational है इसमें. It is a good mix of coco and fofo, so you say 50% is coco and 50% is fofo, and there are a lot of tier 2 cities as well which we have covered, like Okay. even Bardoli, Surat, then there is Navsari. All these places also we are doing very well. So ideally, I mean, I would say that tier 2 cities are doing much better because that acceptance is basically because they are the ones who want newer things in their city, and they are very good with having certain things. They want to try out certain new things which are basically a this is a European concept basically. So they want to have that taste and everything also available in their city. So in tier 2 tier 3 cities थोड़ा इसका acceptance बहुत अच्छा है. तो अभी जो है मुंबई महाराष्ट्र में कितने ऑपरेशनली चल रहे हैं आउटलेट? मुंबई में अराउंड 30 प्लस आउटलेट्स है, Okay. including Pune and Nasik and all those places. So मैं Maharashtra अभी around 30. महाराष्ट्र की बात कर रही हूँ, यस। Correct. तो around 30 plus outlets हैं यहाँ पे. सारे प्रॉफिटेबल आउटलेट है? Yes. All of them are more than 4 years old. Barring a few, Pune में जो है वो एक आध दो आउटलेट है जो 1 year old है, बाकी सारे 4+ years है, and everybody has continued like for the past 4 years because they are profitable obviously. तो बेसिकली आपका एग्रीमेंट है कितने साल का? जो हमारा अग्रीमेंट होता है वो 3 साल का होता है, फिर रिन्यूएबल फॉर अनदर 3 years. तो ऐसा हमने सेटअप किया है. अच्छा बहुत बढ़िया। तो अभी जहां तक देव जी मैंने स्टडी किया है थोड़ा 99 पेनकेक को स्टार्टिंग से लेके अभी तक, राइट. तो आपने फर्स्ट में वफल्स को इंट्रोड्यूस किया, फिर आप पेनकेक लाए मार्केट में, एंड उसके बाद फिर आप फास्ट फूड में भी गए, कॉफीज में भी आ गए, तो राइट. रीजन क्या है, लाइक आप किस मॉडल में वर्क करना चाहते हैं? See, so ideally, I will just correct you. We introduced pancakes first. So this brand is all about pancakes. And then we introduce waffles. We have crepes also. And we have beverages also.
Along with that, as you said, we have coffee, croissants, all of that is also there. So we have basically two models in place. One is the basic model, which will have pancakes, waffles, crepes, and the beverages, which is cold and milkshakes and all that. And the other model will have cakes and coffee and croissant as an addition. So we work on one basic model and one is a cafe model. But the cafe model is only available in Maharashtra and Hyderabad because we have warehouses and all that present in these two cities. And other places, we only have the basic model, which has, the four categories that I mentioned earlier. So ideally, around 70 to 75% of the business is on that basic model only, which is the main, categories where we do the sales, ideally. अभी जो मुंबई और हैदराबाद को छोड़ के जो ऑलरेडी पहले के आउटलेट्स जो चल रहे थे, हाँ उनके जी, पास पैनकेक और वॉफल्स वाले ही हाँ प्रोडक्ट्स। जी, पैनकेक है, वॉफल्स है, क्रेप्स है और तो बेवरेजेस है। तो अभी बेसिकली आप अभी जैसे आपने बोला कि अभी जो 85 आउटलेट्स है वो फोफो और कोको को मिक्स करके है, तो अभी आप किस मॉडल पे वर्क कर रहे हैं? दोनों में वर्क कर रहे हैं? तो दोनों ही साइमल्टेनियसली चलता है। अच्छा। आइडियली ऐसा कोई बेंचमार्किंग नहीं है कि कोको इतना ही होना चाहिए और फोफो इतना ही होना चाहिए। Currently, it is a phase wherein we want to grow and we want to grow fast. So it has to be through both channels, Coco and Fofo. So Fofo is focused basically on expanding in tier 2, tier 3 cities majorly, where even we want to be able to reach faster. So that the franchising is one way in which you can get the brand to be showcased in these cities also. So that is the approach for now. तो अभी अभी जो है ये जो पैन इंडिया में आउटलेट्स ओपन है, किस तरीके से मैनेज करते हैं? लाइक सप्लाई चेन वगैरह प्रोडक्ट्स कैसे आप मैनेज करते सो बेसिकली अराउंड 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स हम ही हमारे वेयरहाउस से उनको भिजवाते हैं। सो इट इज ऑलरेडी प्री शेड्यूल्ड कि आप कभी ऑर्डर कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पूना में कोई आउटलेट है, तो उनको एक वीक का टाइम दिया जाता है जिसमें वो पीओ रेस कर सकते हैं थ्रू द सॉफ्टवेयर ओनली। वी हैव अ सॉफ्टवेयर इन विच सारा पॉस जो भी आपका बिलिंग होता है वो भी मैनेज हो जाता है, प्लस आप इन्वेंट्री भी वहां से ही ऑर्डर कर सकते हो। Except for fresh fruits and milk, we do not allow anything to be procured from outside, and we supply everything from our warehouse only. So that transport and supply chain management is already done for the entire country, as basically all the cities are covered. And it is divided in such a way that it depends on which city is where, and then we decide on whether it should be a weekly or a 15-day or a 1 month cycle in which we need to supply. So it is all software based, it is all tech based, and they place the order and उनको मिल जाता है सारा चीज अराउंड जितना भी टाइम स्पैन है। मतलब अगर 7 डेज है या 15 डेज जो भी साइकिल में बैठता है वो हिसाब से उनको प्रोडक्ट मिल जाता है। और इसमें कैसा है कि पेरिशेबिलिटी कोई इश्यू ही नहीं, क्योंकि सारा चीज फ्रेश ही बनता है वहां पे। तो यहाँ पे आई मीन नेक्स्ट टू जीरो वेस्टेज जैसा कॉन्सेप्ट है, जिसमें आपका कोई ज्यादा वेस्टेज होने नहीं होगा। हैं? तो लाइक आप जैसे वेस्टेज कुछ नहीं होता, तो मतलब लाइव किचन कॉन्सेप्ट जैसा है ये, हाँ जी, तुरंत ये ही। पूरा लाइव किचन कॉन्सेप्ट है। ये सारा चीज इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर ही बनता है। तो जिस ओके। दिन आपने कुछ बैटर या कुछ बनाया, उस दिन का छोटा मोटा अगर कुछ बच गया तो वो वेस्टेज आएगा, विच इज नॉट इवन अ परसेंट बेसिकली। तो ओके। आइडियली इट इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ यू डोंट हैव टू मच ऑफ वेस्टेज। तो ये जो है अप्लाई होता है सिर्फ जो पहले के आउटलेट्स है जहाँ पे पैनकेक और वॉफल्स चल रहे हैं, या फिर जो कैफे मॉडल है सबके लिए अप्लाई होता है? ये सबके लिए अप्लाई होता है। खाली एक ही चीज है कि फॉर एग्जांपल जिसमें केक्स और पेस्ट्री है, वहां पे थोड़ा बहुत वेस्टेज हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इफ सेल डज नॉट हैपन इन द 2 डेज। केक आपने जब शेल्फ में रखा है और 2 डेज में आपका सेल नहीं हुआ, तो वो थोड़ा वेस्टेज होता है। पर उसका भी एक रास्ता है कि भी गिव इट एट अ डिस्काउंट 10-20% एंड और मेक द कस्टमर्स ट्राई। सो वी ideally you don't want to waste the product. We want people to try it and maybe you get another order later on. So that is all how kind of we define it as a no wastage model, because we don't want ideally that loss to happen to the franchisee or the store operator basically. ओके। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वॉफल्स पैनकेक जो होता है उनका सेल्फ लाइफ 2 डेज का होता है, 2 डेज तक आप वॉफल उसको। पैनकेक का तो शेल्फ लाइफ लाइव ही बनता है। मैं केक्स की बात कर रहा हूँ। आप अगर कैफे मॉडल की आप जब बात कर रहे हैं, उसमें केक एंड पेस्ट्रीज रहती है, उसमें 2 दिन का शेल्फ लाइफ रहता है। वॉफल्स और पैनकेक में कोई वेस्टेज नहीं है, बिकॉज वो तो आपका ऑर्डर जैसा आता है आप तभी बनाते हो उनको। तो उसमें जीरो वेस्टेज है, उसमें कुछ भी वेस्टेज। ओके। तो फिर भी जो कैफे मॉडल है इसमें
अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस अभी तक जो आप रन कर रहे हैं कितना परसेंट का वेस्टेज होता होगा? इट इज हार्डली अराउंड 5 to 7%, बिकॉज ओनली वो भी केक और पेस्ट्री का ही होता है, ज्यादातर तो कुछ उसमें कुछ है नहीं दूसरा कोई चीज जिसमें पेरिशेबिलिटी का वो इश्यू। तो आइडियली अराउंड 5 to 7%, विच इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से भी थोड़ा कम ही है। जनरल जो आप बोलते हो तो 10-15% तो होता ही है, बट वो 5 से 7% में हो जाता है, कोई इशू नहीं आता। तो अभी आप दो मॉडल में वर्क कर रहे हैं, राइट। कैफे मॉडल है और दूसरा आपका जो कियोस्क बेसिक मॉडल, बेसिक कियोस्क बेसिक मॉडल है। मॉडल, यस यस। तो ये दोनों मॉडल का इन्वेस्टमेंट क्या होता है, थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करेंगे? तो जो बेसिक मॉडल है उसमें अराउंड 15 to 18 लाख रुपीज का पूरा स्पेंड है, जिसके अंदर आपका फ्रेंचाइजी फी आ जाता है विच इज 5 लाख रुपीज, एंड इक्विपमेंट कॉस्ट है जो अराउंड 2.5 लाख रुपीज है, और बाकी जो कॉस्ट है वो इंटीरियर का कॉस्ट है, दैट डिपेंड्स ऑन द स्पेस दैट वी हैव। तो स्पेस की जब मैं बात करूंगा तो इट होवर्स फ्रॉम 100 स्क्वायर फुट टू अराउंड 300 स्क्वायर फुट। ये आइडियल स्पेस चाहिए हमको जो बेसिक मॉडल के लिए चाहिए, जिसमें आपके, एज आई टोल्ड यू, पैनकेक्स, वॉफल्स, क्रैप्स एंड द बेवरेजेस विल बी अ पार्ट ऑफ द मेन्यू। जो कैफे मॉडल है वो अराउंड 22 to 25 lakhs तक जाता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस, एंड द स्क्वायर फुट स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 250 एंड गोज अप टू अराउंड 450-500 square, in which your menu would be again pancakes, waffles, crepes, and the beverages, along with hot beverages, which is coffee, croissant, and the cake and pastry. So basically, that is how we kind of have the model bifurcations. ओके। तो अभी ये आपने जैसे ऑलरेडी आपने कियोस्क और कैफे का बताया कि ये इन्वेस्टमेंट है। Right. अभी कियोस्क में आपने बोला कि 5 लाख रुपीज इज फ्रेंचाइजी फी, Correct. एंड कैफे मॉडल में क्या फ्रेंचाइजी फी है जहाँ पे आपका 25 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है? वहां पे 7 लाख रुपी फ्रेंचाइजी। ओके। सो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, बिकॉज काफी टाइम से मैं भी सेम इंडस्ट्री में वर्क कर रही हूँ, राइट तो राइट सो अभी हम जहां तक देखते हैं कि हम टोटल इन्वेस्टमेंट का कुछ 15 या ऑन हायर साइड अगर देखेंगे तो 20% फ्रेंचाइजी फी रखते हैं। राइट बट जो मैं आपने बताया, मुझे एक्सप्लेन किया, वो अकॉर्डिंग 25 to 30% जा रहा है। तो राइट। इसका रीजन क्या है? So the reason being, we are a premium brand in terms of, comparing with the other brands in the market. हमने काफी 8 साल निकाल लिए, and we are still growing strong with this model. And again, the brand salience, counts basically when you quote a franchisee fee. And the other part is that when you renew the franchise, जब आप 3 साल कंप्लीट करते हो और अगले 3 साल के लिए आप जब रिन्यू करते हो, तब हम 50% ही फ्रेंचाइजी फी लेते हैं, तभी हम पूरा 5 लाख वापस नहीं लेते आपसे। वहां पे आप तो 2 हाँ चार्ज करते हैं? हाँ हाँ, तो वहां पे आपका एडजस्टमेंट हो जाता है। और इनिशियली हमको भी चाहिए कि जो जो पार्टिसिपेंट है, जो आ रहा है, जो फ्रेंचाइजी है, वो भी काफी सीरियस होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वांट टू डू एज अ बिजनेस, क्योंकि वो बहुत जरूरी। एंड एज अ franchisee fee depends on a lot of factors, like how the brand is placed in the market also. And if you see, I don't see any other brand doing particularly only pancakes, as a category. So in that we have that presence, and the customers also, we have that base also, customer base already present. And it is a old good brand. That is why the price is fixed at that. क्या क्या फैसिलिटीज, लाइक जब एक बार इन्वेस्टर इन हो जाता है, Right. ने आपको एक एलओआई साइन कर दिया आपके साथ, तो उसके बाद का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से कंपनी उनको सपोर्ट करती है? सो आइडियली जब आपका एक बार एलओआई हो जाता है, हम लोग एलओआई में 1 लाख रुपए का एक फी लेते हैं, जो आपके फ्रेंचाइज फी में एडजस्ट हो जाता है। उसके बाद हम एरिया भी उसमें डिफाइन कर देते हैं, आपको कौन सा एरिया, सिटी क्या प्रेफरेबल है, वो एलओआई में लिख देते हैं। उसके बाद हम उनके पास अगर कोई लोकेशन है तो हम वो विजिट करते हैं लोकेशन, या फिर इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू विजिट मे बी, तो हम उसका एनालिसिस हमारे पास होता ही है कि कौन से सिटी में क्या दूसरे ब्रांड्स कर रहे हैं, कंपटीशन ब्रांड क्या कर रहा है, एंड हाउ फीजिबल इट इज, लाइक पॉपुलेशन क्या है, कितना डेजर्ट के लिए वहां पे पॉपुलर, वो सारा स्टडी हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड है सारा चीज। तो हम वो देख के फिर उनको बताते हैं वेदर दैट place is suitable or not, because around 60% of your business is dependent on the location that you select, then rest of it is on the brand.
तो एक बार वो लोकेशन हो जाता है, उसके बाद हम उनको सारा जो स्टोर का डिजाइन है, 3D 2D वो सारा बना के हम उनको देते हैं। प्लस हम उनको ऑप्शन भी देते हैं कि आप हमारे टीम से करवा सकते हो इंटीरियर वर्क, या आप खुद इंटीरियर वर्क कर सकते हो। बट उसमें भी अगर उन्होंने ऑप्ट किया कि उनकी टीम करेगी इंटीरियर वर्क, फिर भी हमारे जो टीम वाले मेंबर्स है वो उनको टाइम टू टाइम असिस्ट भी करते रहते हैं, और उनको बताते भी रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। अलॉन्ग विद दैट उनका जो स्टाफिंग का रिक्वायरमेंट है, तो वो भी हम उनको असिस्ट करते हैं, कौन से स्टाफ लेने चाहिए, कैसे स्टाफ लेने चाहिए, सारा जो भी है सब चीज। अलॉन्ग विद दैट जो भी इक्विपमेंट्स लगेगा और रॉ मटेरियल लगेगा, वो सारा हम ही यहाँ से उनको भेजते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट मार्केटिंग का हेल्प चाहिए जो, तो मार्केटिंग भी हमारे एंड से ही होता है, इट इज ऑल इन हाउस। तो इंस्टाग्राम हैंडल हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया जो इनिशियली लगेगा उनको, और along with that we have software also, so it is majorly tech based। तो एक LMS सॉफ्टवेयर भी है हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, कि जब आपका फर्स्ट इनिशियल ट्रेनिंग भी होगा स्टाफ का अराउंड 10-15 डेज का, जो फिजिकल होगा स्टोर पे, उसके बाद भी अगर उनको कोई रिफर करना है या कोई नया स्टाफ आ गया जिनके लिए उनको फिर से रेसिपीज और सब सिखाना है, तो उसके लिए हमने LMS भी डेवलप किया है, जो लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिससे वो वेब पे सिर्फ लॉग इन करके बहुत आसानी से सारे रेसिपीज और सारे प्रोसीजर सीख सकते हैं। तो इन केस अगर आपका स्टाफ भी चला जाता है, तो आप उस लिंक पे जाके फॉलो कर सकते हो क्या क्या रेसिपी हो रहा है और क्या SOP ब्रांड फॉलो करता है। अलॉन्ग विद दैट जो मैंने आपको बताया, जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, वो भी कंप्लीट सोल्यूशन वाला है, जिसमें आपका स्विगी और जोमेटो भी इंटीग्रेटेड है, तो आपको उसके लिए अलग से कुछ करना नहीं है। और सारा जो भी आपका सेल है वो भी लाइव आपके मोबाइल में भी आपको दिख जाएगा, जो स्टाफ वहां पे कर रहा है वो। और ओके। उसी सॉफ्टवेयर से आप ऑर्डरिंग भी कर सकते हो, तो उसमें आपका रेसिपी मैनेजमेंट भी हो जाता है और फूड कॉस्ट भी आप वहां से निकाल सकते हो। मतलब हर एक चीज काफी टेक बेस्ड है, जिससे बहुत ही आसानी से आप ऑपरेट कर सकते हो और आपको डिफिकल्टी नहीं होगा। मतलब आप अगर नए भी है और आपको इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, फिर भी आपको ऐसा डिफिकल्टी नहीं लगेगा कि मैं कैसे करूंगा क्या करूंगा, बिकॉज वेरी सिंपल एंड वेरी एडजस्टेबल सारे चीजें हैं जो आप समझ के कर सकते हो। तो अभी आप जो है आपका मेजर फोकस कैसे इन्वेस्टर्स को लेके होता है, लाइक जो दूसरे सेक्टर से आ रहे हैं या फिर जो आपको F&B वाले सेक्टर के चाहिए जिनको नॉलेज है, आप कैसे इन्वेस्टर्स को टारगेट करते हैं? Ideally, it does not require that skill also. But if it is from the food industry and they have some knowledge, then it will help them also, because that understanding will come before someone from another sector, like an IT or something. They will not understand it initially. But someone from a food sector will obviously understand it initially also, and he will grasp things better. But as I told you, it does not require a special skill or understanding. It can be learned also. I mean, I myself was not from a food background when I started with Vikesh. So I mean, it is not that difficult, honestly. And it is as a business only. And then basically, it is, you have everything on the app, and we are also there to kind of provide you inputs and training, and everything is sorted. So I don't think it is difficult. Anybody can invest, and at a low investment cost, it is a very good opportunity for anyone. Like even housewives, for example, I have invested with us, and they are running a franchise, is very successful, and they are happy also with something. I mean, rather than sitting at home, they are very much into doing something. And they are also excited because food is something which people relate to very easily. यस एग्जैक्टली। सो अभी जैसे दूसरे सेक्टर्स के लोग हैं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है बट ऑलरेडी वो दूसरे सेक्टर में है, दूसरे फील्ड में है, वो अपना टाइम उतना नहीं दे सकते। राइट। तो आपको इन्वॉल्वमेंट कितना मैटर करता है फ्रेंचाइजी ओनर्स का? सी, आपका बिजनेस है तो आपको इन्वॉल्व तो होना पड़ेगा। 110%। But being with a QSR like us, it is an advantage in terms of how, as I have already told you, I will be repeating myself in this. Like, it is mostly tech based. So, and all everything is, as a user manual we are giving, and we have certain things which are in place, which
the franchisee will not have to bother to start from scratch, you know. So that all is already, and that is the advantage of taking a franchise of a already renowned brand, because everything, the initial start that you require, if you are starting your own brand, you are negating that and you are just progressing to sales. Basically your only goal and scope is just to take care of the sales part. Otherwise everything else, from recipe to SOPs to training and everything, like the supply chain also, is all managed by us. So in that regard, even being from another sector will not matter in this case. But yes, I would suggest, little bit of, surveillance, vigilance, and, visits to the outlet is required. Because even with us, we have company outlets also. We have 45 plus company outlets spread across a lot of cities. But still, we make it a point to visit it once at least, if it is in another city, once at least in a month. So that is always required when it is your business. It is your baby after all. So you will need to kind of give some time to it. You can't just invest the money and leave it high and dry. यस एग्जैक्टली अग्रीड सो बेसिकली अभी मैंने जो फोफो मॉडल में देखा है देव जी की हाँ लोगों जी, के लिए चैलेंज आता है वो एम्प्लॉय मैनेजमेंट को लेकर आता है क्योंकि करेक्ट, ये इस लेवल की हायरिंग है जहाँ पे आप स्टाफ को होल्ड करके नहीं रख सकते अग्री। तो वो उस चीज में आप कैसे सपोर्ट करते हैं फ्रेंचाइजी ओनर्स का जी मैं बताऊं आपको, फूड इंडस्ट्री में अट्रिशन लेवल बहुत हाई रहता है। इन बेसिकली इन द क्यूएसआर फॉर्मेट तो होता ही है। बट यहाँ पे कैसा एक एडवांटेज है कि आपको यहाँ पे कोई स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए। यहाँ पे कैसे है कि जो बेसिक स्टूडेंट्स रहते हैं, जिनको या खाली इंग्लिश आना चाहिए या कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड आइडियली। एंड staff will keep on shuffling. That is given in the food industry. So in that case also, we already have an HR in place. We do support them when it comes to staff hiring, as I had told you earlier also. Like we do support in staff hiring and all that. And we basically, you require a stable manager. The staff can keep on shuffling, changing. And ideally, to retain the staff, you should be giving incentives and all that. That is also in place. Like we have a few ideas that we also share with the franchisee. जब वो ऑनबोर्ड करते हैं तभी उनको बता देते हैं कि भाई ये आपको थोड़ा करेंगे तो आपका क्या सेल भी बढ़ेगा, और वो एम्प्लॉय भी एंगेज रहेगा आपके साथ, थोड़ा लंबा भी रहेगा। तो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है टू होल्ड द स्टाफ ideally. And that is what we've done in the past so many years, and we have been successful in opening so many stores in other cities also. So that is one thing that you need to follow. तो अभी आपने ऑलरेडी जैसे एक्सप्लेन किया कि आप ट्रेनिंग देते हैं स्टाफ को 10 to 15 डेज का जहाँ पे उनको सारी रेसिपीज एक्सप्लेन की जाती है तो क्या Correct. ये सेम चीज फ्रेंचाइजी ओनर्स के लिए भी अप्लाई होता है उनको भी आप ट्रेनिंग देते हैं चीजें एक्सप्लेन करते हैं Yes, so ideally हम तो बोलते हैं फ्रेंचाइजी ओनर्स को भी कि आप भी ट्रेनिंग का पार्ट रहिए। बट इन केस देयर अवेलेबिलिटी इज नॉट देयर, देन वी डेफिनेटली वांट देम फॉर 2-3 days एटलीस्ट टू मेक देम अंडरस्टैंड कि भाई सॉफ्टवेयर कैसे चलता है। आप आपका सॉफ्टवेयर का सेल कैसे ट्रैक करोगे, आप ऑर्डरिंग कैसे ट्रैक करोगे, आपको आपके एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या करना चाहिए, जो बेसिक चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो सारे सेशंस में हम ओनर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। And that is a compulsion, because we don't want them to kind of be clueless. खाली पैसे इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्ट कर दिया, वैसे हमको चाहिए नहीं। हमको चाहिए कि आपको पूरा नॉलेज भी होना चाहिए कि आप किस में पैसा डाल रहे हो, बिकॉज आफ्टर ऑल यू वांट टू अर्न फ्रॉम दैट बिजनेस, इट इज नॉट लाइक कि भाई इन्वेस्ट कर दिया और अपने आप चलेगा, वैसे नहीं होता है। इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट रखना है, बट इतना होना चाहिए कि आपके स्टाफ भी विजिलेंट हो कि भाई हाँ ओके, ओनर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो देख रहे हैं, एंड आप कंप्लीटली किसी पे छोड़ नहीं सकते। तो ट्रेनिंग में हम उनको डेफिनेटली जो भी सॉफ्टवेयर के नुआंसेस है और उसके जो भी मतलब सारे रिपोर्ट है कैसे देखने हैं, प्लस ट्रेनिंग में क्या क्या आपको देखना है। ऑर्डरिंग में मेजर फैक्टर इज कि आपका फूड कॉस्ट कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि आप वो स्टाफ पे छोड़ दोगे तो वो कुछ भी ऑर्डर कर सकता है, वो अपने हिसाब से करेगा, एंड देन इवेंचुअली आप पे वो आएगा कि भाई मेरा क्या हो रहा है। क्योंकि हम ऑडिट्स भी कंडक्ट करते हैं, हम रेगुलर पीरियोडिक ऑडिट्स भी करते हैं एट स्टोर लेवल।
which are secret audits also, which cover a lot of things. मतलब उसके अंदर एसओपी फॉलो हो रहा है कि नहीं, ग्रूमिंग फॉलो हो रहा है कि नहीं, हाइजीन फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो सारी चीजें भी हम देखते हैं और वो रिपोर्ट भी करते हैं ओनर्स को। तो वो भी उनको हेल्प करता है इन इन टर्म्स ऑफ नोइंग व्हाट इज हैपनिंग एट द आउटलेट। क्योंकि काफी टाइम, जैसे आपने बोला कि काफी अलग सेक्टर्स में से भी होते हैं लोग जो इतना टाइम नहीं दे सकते, इसीलिए हमने एक ऑडिट का सिस्टम भी रखा है, जिससे हम उनको बता सकते हैं कि आपके यहाँ पे क्या क्या चीजें नेगेटिव में जा रही है या क्या क्या चीजें फॉलो नहीं हो रही, जिससे वो करेक्टिव स्टेप भी इजीली ले सकते हैं। तो उस तरह से भी हम उनको गाइडेंस देते रहते हैं ऑडिट के। ओके, तो ये ऑडिट मंथ में कितने, मतलब कितने मंथ पे होता है? और मुंबई तो ठीक है, बट आउट ऑफ महाराष्ट्र के लिए आपने कुछ अपॉइंट किया है किसी को जो हाँ, तो ऑडिट आउट है? ऑफ बॉम्बे महाराष्ट्र भी हम मंथली एक बार तो ऑडिट करते ही है, या 2 मंथ्स में एक बार करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टोर साइज एंड द सेल। सो आइडियली दैट इज अ फैक्टर इन विच वी काइंड ऑफ कंडक्ट द ऑडिट्स। पर 100% वो महीने या 2 महीने में एक बार तो होता ही होता है, कोई भी सिटी होने। और बॉम्बे में तो काफी फ्रीक्वेंट भी होता है वो। तो बॉम्बे में शायद 2 महीने में 2 बार भी हो जाए आपका आउटलेट। और हमारे पास ऑलरेडी एक ऑडिट का टीम का एक सेट ही है, जो सारे विजिट करते हैं सारे स्टोर्स, एंड वो भी पूरा ऑनलाइन ही है, सारा रिपोर्टिंग एंड एवरीथिंग। सो वो सारा चीज हम हाईलाइट करते हैं फ्रेंचाइजी को भी। और उनके लिए वो एक तरह से, जैसे मैंने बताया पहले, कि उनके लिए वो बेनिफिट भी हो जाता है एक तरह से, कि उनको भी एक ओवरव्यू आ जाता है कि क्या हो रहा है बिजनेस में। और ये सारी नेगेटिव अगर मैं हटा दूं तो मेरा बिजनेस उतना ज्यादा ग्रो कर पाएगा। तो अभी जो है आपके आउटलेट्स जो है उनकी मिनिमम से मैक्सिमम क्या साइज के आउटलेट्स है आपके पास? सो मिनिमम बीइंग इन द मॉल्स है हमारे पास, वो अराउंड 70 to 80 स्क्वायर फुट है। एंड मैक्सिमम इज अराउंड 650 स्क्वायर फुट, which is a proper cafe, which one of them is in Nasik. So this is the size range in terms of store sizes. But for the basic model, 100 to around 250 is the ideal space, and for the cafe it's around 250 to 400 is what the range is. अभी देव जी, जैसे आपने बताया कि महाराष्ट्र में मंथ में एक बार दो बार भी ऑडिट हो जाते हैं और आउट ऑफ महाराष्ट्र आप मंथ में एक बार कराते हैं, तो Right. ये आपकी ओन टीम है या फिर आप थर्ड पार्टी के पेरोल पे कराते हैं? So it is a mix of both. It can be third party audits also, but ideally 80% of the time हमारी खुद की टीम ही जाती है। एंड अच्छा। अगर पॉसिबिलिटी नहीं है उनकी विजिट करने की, फिर भी हम थर्ड पार्टी रखते ही है, जिससे ऑडिट होना ही चाहिए। मतलब द आइडिया इज कि वो मिस नहीं करेंगे, जो शेड्यूल है वो करना ही। एंड उस हिसाब से, बिकॉज दैट इज वेरी क्रिटिकल इन दिस सॉर्ट ऑफ बिजनेस, कि आप पहले ही उसको रोक दे, अगर कुछ खामियां है या कुछ नेगेटिविटी है तो आप पहले ही उसको स्टॉप कर दे, तो वो बढ़ेगा नहीं। क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। एंड बेसिकली आप ऐसे तो कवर्ड हो, क्योंकि सारा टेक बेस्ड है, तो कुछ चीजें ऐसी नहीं है जो आपके मतलब जहन से निकल जाएगी आप। बट द ग्रूमिंग पार्ट, द स्टोर, हाइजीन कैसा है आजकल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम उसको काफी प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि आई मीन when you are serving something to the customer, the health and everything and the hygiene is very important for us. So in that regard, audits have a very important place in what we do. अभी आपने, आपका टारगेट ऑडियंस कैसा है? लाइक जो कैफे पे जो लोग आते हैं वो क्या टारगेट है आपका, और एज ग्रुप उनका क्या होता है अभी तक तो जो आउटलेट? ज्यादातर तो जेंजी ही है, और यंगस्टर्स हैं, मतलब स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग। सो आई वुड से एज ब्रैकेट अगर मैं बोलूँ तो अराउंड मे बी 3 to 5 years से लेके अराउंड 25 इज द मेन टारगेट, 25 to 30। एंड even people like us, who have already entered into 40s, but have a desert craving, तो हम भी एक ऑडियंस ही है for 99 minutes. But ideally it is more kids friendly, and they basically love the desserts that we serve. अभी जो आपने बताया कि साइज ऑफ स्क्वायर फीट आपके जो भी है आपके Right. कियोस्क में, कैफे में, तो Right. इनका एवरेज सेल क्या है, मिनिमम टू मैक्सिमम? So when we talk about the basic model, ideally sale is between starting from around 4.5 lakhs to which goes up to around 12 lakhs also in certain cases.
And the cafe model, it starts from around 7 to 8 lakhs and it ends up around 18 to 19 lakhs also. So this is 18। what we are. Yeah, 18 to 19 lakhs. Yes. Yes. तो ये कैफे मॉडल में फिक्स कॉस्ट क्या आती है? लाइक जो जो आउटलेट 19 लाख रुपीस कर रहा है उनका फिक्स हाँ, कॉस्ट क्या है? तो मैं सेल्स से मैं पिक नहीं कर पाऊंगा, मतलब 7-8 लाख का भी फिक्स कॉस्ट तो सेम ही आने वाला है। बट आइडियली हम कैसे करते हैं कि जो रेंट टू रेवेन्यू रहता है, फॉर एग्जाम्पल आप 10 लाख का सेल कर रहे हो कोई आउटलेट, तो आपका रेंट आइडियली होना चाहिए 1 लाख रुपया, 1,10,000 रुपया आइडियल। मतलब वो अराउंड 10 से 12% होगा तो आपको अच्छा खासा छूटेगा उसमें पैसा। और बाकी सारे चीजें भी अराउंड से परसेंटेज में देखे तो सैलरी भी मैं उतना ही गिनूंगा, 10 से 12% शुड बी और सैलरी कॉस्ट। सो अगर 10 का सेल कर रहे हो तो आपका लाख रुपए का सैलरी होगा, बिकॉज दे आर डिवाइडेड इनटू 2 शिफ्ट, 2 शिफ्ट में काम करते हैं लोग। एंड 10 लाख का सेल है तो आपको एटलीस्ट 5 एक लोग लगेंगे आपके स्टोर पे, इंक्लूडिंग अ मैनेजर ऑल्सो। तो उनका भी सैलरी अराउंड दैट जाता है। एंड उसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, वो अराउंड समझे आप 50-1 हजार रुपया रहता है इफ इट इज अ 10 लाख रुपी सेल। सो इट इज अराउंड 5%। सो आपका अराउंड समझिए ना, मोटा मोटा 30% जैसा आपका कॉस्ट रहता है जो फिक्स्ड है ऑन द सेल। बट हियर एज आई टोल्ड यू, इट entirely depends on the rent to revenue, which is very important। मतलब अगर आप 50,000 के रेंट में कोई जगह ले रहे हैं तो आपको एटलीस्ट वहां पे लगना चाहिए कि 4.5-5 लाख का सेल होना ही चाहिए। तो आप आराम से 25-1% मार्जिन निकाल सकते हो। मतलब आप नेट प्रॉफिट 25% आप निकाल हाँ जी, सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी ये जो सेल्स होते हैं इसमें ऑनलाइन क्या परसेंटेज है सेल्स का और ऑफलाइन? तो इट इज अराउंड, ऑफलाइन इज अराउंड 60% एंड अराउंड 40% इज ऑनलाइन। And in tier 2 cities, it is around 70-75% offline and around 25 to 30% online. So major sales हमारा ज्यादा offline है rather than having it online, because उसमें आपका थोड़ा benefit भी है, तो आप कमीशन और वो काफी कुछ सेव कर लेते हो। अच्छा, अभी आपने जैसे एक्सप्लेन किया मुझे कि 4 लाख रुपीज से लेके आपका 9 to 10 लाख रुपीज तक का सेल यस, होता है। यस। तो जो आउटलेट 4 लाख रुपीज का सेल कर रहा है तो हाँ जी। उनको प्रॉफिट क्या बच रहा है? बिकॉज एक्सपेंसेस तो सेम ही होंगे। नहीं, जैसे मैंने आपको बताया ना, रेंट टू रेवेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब अगर मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा एक आउटलेट है सी वुड्स में, विच इज अ कियोस्क अराउंड 70-80 स्क्वायर फुट, जहाँ पे रेंट इज अराउंड 45,000, विच इज अ फ्रेंचाइजी ओन। एंड दैट इज डूइंग अराउंड 5-5.5 एज एन एवरेज। मतलब वो भी रेंट टू रेवेन्यू रेशियो में अच्छा ही है। मतलब वो काफी डिपेंड करता है कि आप कौन से प्लेस में खोल रहे हो और उसका रेंट टू रेवेन्यू क्या है। तो उस हिसाब से आप अगर कॉस्ट ब्रेकअप करेंगे ना, फिर भी आपको 25 से 30% निकलेगा ही। क्योंकि ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो अगेन सेल डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे ही यही कर रहे हैं और सब बहुत अच्छे हैं। कोई कोई प्लेसेस में, इवन कोको स्टोर्स में भी ऐसा हो सकता है कि समझो 4 लाख आपने जो एग्जाम्पल दिया, और वहां पे मैं 80,000 का रेंट भर रहा हूँ, जो मेरा मैथमेटिक्स में 10% मैं ज्यादा भर रहा हूँ उसमें, उस केस में। बट इवेंचुअली क्या है कि उसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा गिर सकता है, अराउंड इट कम्स टू अराउंड 16 to 18%। बट फिर भी मैं वहां पे कोई इश्यू नहीं है, आई एम प्रॉफिटेबल देयर ऑल्सो। आप समझो, बट इट अगेन डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस। बट द आइडियल, एज आई टोल्ड यू, 10 से 12% होगा तो आपको इजी 25% आप छोड़ पाएंगे। तो लोकेशन में आपने ऑलरेडी पहले ही बोला था कि लोकेशन मैटर्स, एटलीस्ट 60% लोकेशन यस, मैटर करती है। तो यस। लोकेशन फाइनलाइज करने के लिए आप लोगों के कुछ पैरामीटर्स होंगे कि किस करेक्ट। अकॉर्डिंग आप करते हैं, कहाँ पे किस तरीके का रेवेन्यू जनरेट होता है, क्या रेंट चल रहा है, तो ये आपकी टीम करती है सारा हेल्प? हाँ, हम लोग सारा असिस्ट करते हैं उनको कि कौन सा लोकेशन कैसा होना भी चाहिए। जैसे कि उसका बोर्ड साइज कैसा होना चाहिए, 10 फुट का हमको बोर्ड, फ्रंट जो फ्रंटेज बोलते हैं, वो 10 फुट का एटलीस्ट होना चाहिए। और वो प्रोमिनेंट एक फूड हब में होना चाहिए, जो आइडियल, मतलब जहाँ पे लोग आते जाते हैं, आजू बाजू में अच्छे ब्रांड्स है। तो वो एक क्या है कि वो आपको अश्योर्ड एक फुटफॉल दे सकता है। और आपके मॉल में अगर आप जाएंगे तो वहां पे तो क्या फिक्स फुटफॉल आते हैं, जो पब्लिक मॉल में आएगा, तो पॉपुलैरिटी ऑफ द मॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अलोंग विद दैट हम, मैंने जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि हम स्टडी भी करते हैं एज अ सिटी कैसा है, एज एन एरिया डेमोग्राफी कितना है, मतलब कितना पॉपुलेशन है उस एरिया में। प्लस
वहां पे हमको डेटा काफी सोर्सेज से हम ले लेते हैं, जैसे स्विगी जोमेटो हो गया या फिर अदर सोर्सेज से भी हो गया, कि वहां पे कितना डेजर्ट का ऑर्डर आ रहे हैं दूसरे ब्रांड का, या कितना डेजर्ट के स्पेस में वहां पे ऑर्डर फ्लो है। तो उससे हमको पता चल जाता है कि एक एस्टिमेटेड सेल कितना हो सकता है ये आउटलेट का। एक कंजर्वेटिव फिगर हम ले लेते हैं, और वो कंजर्वेटिव फिगर अगर मैच होता है फॉर आर रिक्वायरमेंट, फिर ही हम उनको गो अहेड देते हैं उसके। तो आप उनको पहले कोई प्रोजेक्शन रिपोर्ट शेयर करते हैं कि मतलब क्या सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो लोकेशन पे? ये बिकॉज सब ऐसा थिंकिंग होता है ना कि मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न क्या मिलेगा उसके बाद। 100%, वो तो सभी को होता है कि भाई आज कोई ऐसे तो पैसे देता नहीं है बिना उसको पता किए कि भाई कितना रिटर्न आएगा। तो हम डेफिनेटली उनको एक प्रोजेक्शन देते हैं कि क्या उसका पोटेंशियल है। बट अगेन एज आई टोल्ड यू, इट इज अ प्रोजेक्शन, वो खाली आपके आउटलेट को एक एक्यूरेसी लेवल पे आप बोले तो 70-80% एक्यूरेट रहेगा। बट दैट 20% जो 100% करना है अपने को एक्यूरेसी, वो विथ एफर्ट्स भी होगा। और कैसे आप मैनेज कर रहे हो और कैसे आप कस्टमर को सर्व कर रहे हो, बिकॉज ये पूरा सर्विस इंडस्ट्री है एंड डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर सर्विंग द कस्टमर, और कितना कंटिन्यूएशन आता है, क्योंकि नए कस्टमर तो आ ही जाएंगे। वो नए टू रिपीट कस्टमर कन्वर्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द सर्विस फ्लो, which again comes back to the training part, wherein we are training the staff and we have that SOP in place. And LMS also helps, like जो ऑनलाइन आपको कभी भी आपको रिफर करना है, आपको ऐसे नहीं कि कंपनी के वापस फोन करो और उनको बुलाओ और रुको, वो आपको वेट टाइम है ही नहीं। जैसा आपको कुछ भी क्वेरी है, आप लॉग इन कीजिए और आपको तुरंत उसका आंसर मिल जाए। तो सर्विस इंडस्ट्री में वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको कस्टमर को कैसे एक रिटेन करता रहना है और रिपीट कस्टमर, जिससे आपका सेल बेसिकली बढ़ेगा। जैसे ये सारे चीजें आप उनको बताने के बाद तो क्या रेंटल उसके बाद डिसाइड होता है कि अभी यहाँ पे मुझे क्या रेंटल देना चाहिए जहां से मैं क्या रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा? रेंटल इज अगेन अ पार्ट ऑफ दैट नेगोशिएशन ओनली व्हेन यू स्काउट फॉर अ लोकेशन। मतलब जब आपने लोकेशन कुछ फाइंड आउट किया और हमने एक प्रोजेक्शन किया कि भाई हाँ इतना पोटेंशियल है ये स्पेस में, समझो 4 लाख का पोटेंशियल है, और समझो वो 50,000 मांग रहा है रेंट, विच इज अगेन इन आवर थ्रेशोल्ड, तो वो हम ओके कर सकते हैं। और नेगोशिएशन पार्ट सी बेसिकली इज ऑन द फ्रेंचाइजीज परव्यू, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड के साथ बात करना है, अग्रीमेंट उनको करना है। तो हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई ये रेंट होना चाहिए। बाकी नेगोशिएशन पार्ट जो है वो वी लीव इट टू देम बेसिकली, कि आप बट लैंडलॉर्ड के साथ कर सकते ऐसा भी होता होगा कि आपने एक फिक्स कर रखा है कि मुझे 1 लाख या 1,50,000 के अबव रेंट पे कोई पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं जाना है। बिकॉज हैं। राइट। ऐसा नहीं हो कि इन्वेस्टर ने पैसा लगाया और फिर उसका रेंट ही सिर्फ वहां से आ रहा है, तो जेब से कितना दिन सरवाइव करेगा? आफ्टर 6 मंथ के 100%। बाद नहीं करना 100% पड़ेगा। नहीं, सो दैट इज व्हाई वी हैव दैट इन प्लेस, कि आपको मैकेनिज्म क्या है, आपने हमको लोकेशन दिखाया, हम आपको पोटेंशियल एक प्रोजेक्शन दे देंगे जो हमारे थ्रेशोल्ड के बीच में होना चाहिए, कि समझो 10 से 12% के सेल के हिसाब से उसका रेंट बैठ रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं बैठ रहा है तो हम नहीं करेंगे। क्योंकि बॉम्बे में फॉर एग्जांपल अगर मैं सुख सागर देख लूं या फोर्ट एरिया देख लूं, अभी वहां पे रेंटल्स ही अराउंड 182 लाख पर सेल भी वही हिसाब से होता है वो एरिया। अगेन मैं नहीं बोलता कि वो 10-12% में आएगा, वो 15-16% में भी आएगा रेंट टू रेवेन्यू रेशियो। बट अगेन ओवर देयर यू आर ओके टू डू दैट बिजनेस, बिकॉज आपको अश्योर्ड रिटर्न आ रहा है। एंड दोज आर वेरी प्राइम एरियाज ऑल्सो वेयर योर विजिबिलिटी मैटर्स। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इवन इफ यू से 1 लाख या 1,50,000, ऐसा कोई थ्रेशोल्ड नहीं बता सकते। बट अगेन इट अगेन टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज द सेल पोटेंशियल ऑफ दैट आउटलेट। अगर वहां पे सेल पोटेंशियल है 10 लाख का, तो 1 लाख का रेंट आप कर सकते हो, कोई इशू अच्छा, आपने लोकेशन देख के आपने जो भी एक प्रोजेक्शन दे दिया इन्वेस्टर नहीं। को राइट। कि ये प्रोजेक्शन है, हम लोग ये सेल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट। अगर वो नहीं हो पाता है तो किस तरीके की सपोर्ट ब्रांड करती है इन्वेस्टर्स को? सी आइडियली नहीं हो पाएगा तो हम मार्केटिंग प्लान, बूस्टिंग, वो सारे टूल्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी के जो ऑडियंस है वो ज्यादा टेक बेस्ड एंड ऐप बेस्ड हो गई है और इंस्टाग्राम बेस्ड हो गई है। मतलब जितना आप उससे मार्केटिंग करोगे, उससे आपका सेल्स जनरेट होगा ही। एंड दिस इज नॉट 6 मंथ जर्नी और ईयर्स जर्नी, दिस इज अ 3 ईयर जर्नी दैट यू हैव टू कंप्लीट। तो आप 2 महीने में गेज नहीं कर सकते अरे मेरा कुछ सेल नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है। इट माइट स्टार्ट स्लोली बट देन इवेंचुअली इट विल ग्रो।
बिकॉज वाई वी हैव द प्रोजेक्शन इन प्लेस के आप 60-70% हम कवर कर दे रहे हैं। वो जो 20-30% बचता है वो हमको देखना है कि वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और वो डिपेंड कंप्लीटली करता है कि वहां पे सर्विसिबिलिटी कैसी हो रही है और हम मार्केटिंग क्या कर रहे हैं। वो दो फैक्टर्स से आपको ड्राइव मिलता ही मिलता है। तो आई डोंट थिंक ज्यादातर इतना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज मेन आपका जब लोकेशन हम अप्रूव भी करते हैं तो सारे फैक्टर्स देख के ही हम अप्रूवल देंगे, बाकी हम उसको अप्रूव करेंगे ही। आपने जैसे अभी बोला कि मार्केटिंग स्टार्टिंग में आपने ये कवर किया था कि मार्केटिंग जो भी है वो हम करते हैं, बिकॉज मैंने करेक्ट। जो फ्रेंचाइजी फी की बात की थी। यस। तो क्या लेवल की मार्केटिंग आप करते हैं और क्या लेवल की मार्केटिंग फ्रेंचाइजी ओनर्स को करते So when we talk about marketing, the digital part of the marketing is completely handled by us. वो सारा हम ही हैंडल करते हैं और हम उनको आइडियाज भी देते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या क्या करना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ लाइक जैसे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया या इंस्टाग्राम मार्केटिंग हो गया, वो सारा हम प्लान उनसे शेयर भी करते हैं। और अगेन इफ इट इज अ डिफरेंट सिटी मे बी उनके भी इनपुट लेते हैं, ऐसे नहीं है कि हम बस हमने बोल दिया वैसे करना है। हम उनसे भी एक व्यू लेते हैं कि भाई आपकी सिटी में क्या अलग अगर कुछ आपको लगता है वो हम करते हैं। हम वो एडजस्ट, प्लस जो ऑफलाइन मार्केटिंग बोलते हैं बीटीएल, जो समझो होर्डिंग्स हो गए, वहां पे पैम्फलेट्स हो गए और न्यूज़पेपर इंसर्ट्स हो गए, वो सारे क्रिएटिव्स हम उनको शेयर कर देते हैं, वो पार्ट वो कर सकते हैं। और अगेन एज आई टोल्ड यू, वो एक डिस्कशन होने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि भाई क्या हम करना है और कैसे करना है। बट आइडियली जो ऑफलाइन पार्ट है वो हम उनको देते हैं संभालने के लिए, बट क्रिएटिव्स अगेन आर शेयर्ड बाय अस। मतलब सारा चीज हम उनको दे देते हैं, खाली उनको प्रिंटिंग करके मे बी पेपर इंसर्ट करना है या फिर कोडिंग करनी है या किधर बैनर करना है, वो सारी चीज वो कर सकते हैं। एंड अगेन विद द स्विगी जोमेटो पार्ट जो ऑनलाइन हो जाए, उसमें भी काफी सीपीसी जैसे बोलते हैं, क्लिक कॉस्ट पर क्लिक होता है, उधर भी एड्स रन होते हैं। तो उसमें भी हम उनको असिस्ट करते हैं कि कौन सा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग भी है एंड प्लस सेल्स भी है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वो आपको सेल भी देता है। हैं? अभी ये सारी चीजें कर लिया हमने, जैसे मार्केटिंग भी कर ली या फिर आपने सेल्स प्रोजेक्शन दे दिया, सारी चीजें हो गई। मान राइट। लो उसके बावजूद नहीं चल रहा है, तो क्या राइट। ऐसे केस में वो आउटलेट कंपनी लेकर रन कर सकते हैं? बिकॉज आपको प्रूफ करना है कि मैंने सब कुछ किया है, वहां तो चलना ही चाहिए। राइट। नो सी, राइट नाउ वी डोंट हैव दैट मॉडल इन प्लेस कि भाई हम कंपनी टेक ओवर करेंगे, लेकिन डेफिनेटली एक हम लोग वो कर सकते हैं। बिकॉज व्हाट हैपेंस इज अगर वो बहुत रिमोट एरिया में है, जैसे कि हमसे अभी बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे एंड समवेयर मे बी इन यूपी और समवेयर इट देयर इज एन आउटलेट व्हिच इज नॉट डूइंग दैट ग्रेट, then it becomes very difficult for me to arrange that manpower and everything for one outlet. बट आइडियली अभी तक तो ऐसा टच वुड ऐसा आया नहीं है कोई इंसिडेंट कि हमारा आउटलेट नहीं चल रहा है। तो वो उधर सोचना ही नहीं है फिलहाल। हमको हमको तो यही सोचना है कि भाई हम प्रॉफिटेबल काम करना है और अच्छा काम करना सो अभी आप मुझे ये बताइए सर कि अभी ये सारे चीज हो गए, आप कुछ रॉयल्टी लेते हैं? है। हाँ, हम लोग सेल पे 7% रॉयल्टी लेते हैं, विच इज ऑन मंथली बेसिस। तो तो ये टोटल सेल पे होगा आपका हाँ, 7%? टोटल सेल पे 7%। तो जिसमें आप आपने ऑलरेडी जैसे बोला है, फिर भी मैं रिपीट करूँ कि आपने जैसे बोला कि ये रॉयल्टी के बेस पे आप ऑडिट्स करते हैं, मार्केटिंग करते करेक्ट। हैं। करेक्ट। भी इसके अलावा जैसे आपने बहुत सारे न्यू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं, यस। तो ये प्रोडक्ट एवरी ईयर कुछ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं या फिर उसका कुछ है कि कब लॉन्च होता है न्यू प्रोडक्ट, और आप फिर वो पैन इंडिया में कैसे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, स्टाफ को कैसे बताते हैं? सो व्हेन यू टॉक अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, वो एक साल का टाइम तो बहुत बड़ा टाइम हो गया फॉर अ क्यूएसआर इन डेजर्ट इंडस्ट्री। तो हम काफी सीजनल चीजें भी लाते हैं। जैसे कि मैंगो का सीजन हो गया तो उसका एक मेन्यू होता है मैंगो स्पेशल। अभी जैसे स्ट्रॉबेरी का सीजन आएगा तो स्ट्रॉबेरी स्पेशल करते हैं, और उसमें भी काफी चीजें इनोवेट करते हैं। नॉट के भाई एकदम अलग ही प्रोडक्ट आ गया, जो हमारे मेन्यू में है पैनकेक वॉफल उसी में कुछ ना कुछ नया आता है। अलोंग विद दैट कोई कोई एसकेयूज बढ़ाते भी है। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया है एक किंग कॉन्ग शेक, जो नॉर्मल शेक से मतलब साइज भी बड़ा है एंड इट इज विथ गुडीज आइसक्रीम एंड एवरीथिंग हम लोग डाल रहे हैं। प्लस हमने अभी कुनाफा भी लॉन्च किया था इन वॉफल्स एंड पैनकेक्स। तो जैसे जैसे ट्रेंड होता है ना, जो ट्रेंडिंग है वो हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है।
कोई कोई चीजें सीजनल होती है, कोई कोई चीजें विल बी समथिंग न्यू, बट अगेन इट विल बी रिलेटेड टू व्हाट आवर कैफे इज टू बी नोन अबाउट। तो वो सारा चीज रिलेटेड भी होता है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रेनिंग अगेन, इफ अ फिजिकल ट्रेनिंग इज नॉट पॉसिबल, देन वो एलएमएस जो सॉफ्टवेयर है, आप उसमें जाके लॉग इन कर सकते हैं। और वहां पे ट्यूटोरियल बनाते हैं, हम वीडियोस बनाते हैं प्रॉपर। उसके साथ हम रेसिपी भी और सारा चीज भी उसमें शेयर करते हैं। तो वो सारा उनके लिए भी बहुत इजी हो जाता है। एंड इन केस अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है तो हम वहाँ पे ट्रेनिंग मैनेजर भी भेज देते हैं, जिससे उनको एक असिस्ट मिल सके। आप मास्टर फ्रेंचाइजी में भी वर्क करते हैं सर? मास्टर फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं? यस, मास्टर फ्रेंचाइज दे रहे हैं, बट इट इज अगेन डिपेंडेंट सिटी टू सिटी, कैसे उसका फ्रेंचाइजी फी एंड एवरीथिंग इज देयर। वो डिपेंड करता है कौन सी सिटी में, मतलब कितना पोटेंशियल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बताऊं दिल्ली, दिल्ली है तो दिल्ली में अराउंड 50 आउटलेट खुल सकते हैं। तो व्हेन आई से 5 लाख रुपी फ्रेंचाइज फी है, इन द केस ऑफ मास्टर फ्रेंचाइज इट विल कम टू से पर आउटलेट अराउंड 2.5 to 3 लाख। ओके, तो अभी कुछ जो अभी कुछ मास्टर फ्रेंचाइजी दिया है आपने किसी सिटी में या कहीं जो चल रहा है? अभी फिलहाल तो ऐसा कोई है नहीं, बट हाँ, गुजरात में एक मास्टर फ्रेंचाइज है, सूरत में। अच्छा। तो वहां पे है मास्टर फ्रेंचाइज, वो ऑलरेडी 5 स्टोर खुल गए वहाँ अभी सिर्फ सूरत के लिए आपने दिया है मास्टर पे। हाँ जी, फ्रेंचाइजी? हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे थोड़ा सा मास्टर फ्रेंचाइजी के बारे में एक्सप्लेन करिए कि उसका इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट पार्ट, अभी डिपेंड करता है विच सिटी यू आर टॉकिंग अबाउट। फॉर एग्जांपल, एज आई टोल्ड यू, बॉम्बे में तो हम देते ही नहीं है मास्टर फ्रेंचाइज। वो ऑलरेडी बिकॉज वी आर बेस्ड आउट ऑफ बॉम्बे, तो वहाँ पे ऑप्शन नहीं है। लेकिन पूना अगर आप देख ले तो वहाँ हम मास्टर फ्रेंचाइज का ऑप्शन देते हैं, जिसमें आप 10 आउटलेट एक साथ का ले सकते हो, एक्सक्लूसिविटी। वहाँ वो एरिया में आपको हम दूसरा कोई आउटलेट आएगा नहीं। एंड फॉर दैट वी चार्ज 30 लाख रुपीज एज फ्रेंचाइजी फी फॉर 10 आउटलेट्स। तो 10 आउटलेट आप खोल सकते हैं। देर इज अ टाइम फ्रेम ऑफ 1.5 years दैट वी गिव इन विच यू कैन ओपन द आउटलेट्स, एंड इट विल बी इन अ फेज्ड मैनर। तो वैसे ही डिपेंडिंग ऑन विच सिटी वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर द मास्टर फ्रेंचाइज, इट विल बी, एज आई टोल्ड यू, 5 लाख ऐसे फ्रेंचाइज फी है, इट विल बी रिड्यूस टू 3 lakhs पर पर स्टोर ऐसा। और उसमें काफी और भी एडवांटेजेस, जैसे कि थोड़ा बहुत हम रॉयल्टी में भी थोड़ा उनको बेनिफिट देते हैं वहां पे, कि वहां पे हम लोग 6% रॉयल्टी चार्ज करते हैं इंस्टेड ऑफ 7%। तो उसका इन्वेस्टमेंट वगैरह क्या होता है? और मास्टर फ्रेंचाइजी में फिर वो जो फ्रेंचाइजी आपने 10 फ्रेंचाइजी के लिए मान ली दीजिए आपने दिया हाँ, है, हाँ। तो फिर उनको आप किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? लाइक स्टाफ हायरिंग के लिए या फिर और भी चीजों के लिए जो उनको सपोर्ट लगता है, वो कंपनी क्या क्या चीजें करती है उनके लिए? तो एज अ फ्रेंचाइज ओनली सारी चीजें सिमिलर ही रहेंगी। मास्टर फ्रेंचाइज में एक ही चीज एक बढ़ जाएगी, जो है वेयर हाउसिंग। जिसको वो उनको वेयर हाउसिंग का एक मतलब वेयर हाउस लेना पड़ेगा, जिसमें वो सारे प्रोडक्ट स्टोर कर सकते हैं। और वहां से ही वो मैनेज कर सकते हैं टू डिलीवर टू दी 10 स्टोर्स और 5 स्टोर्स, वॉट एवर दे हैव। तो एक वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, एक लेवल। बाकी सारी चीजें जैसे मैंने बताया, ट्रेनिंग से लेके स्टाफ हायरिंग से लेके प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट, सारी चीजें हम लोग ही मैनेज करते हैं। तो सेम, आप अगर एक फ्रेंचाइज लो या मास्टर फ्रेंचाइज लो, द वर्क्स आर सिमिलर बेसिकली। जो भी आपको मिलने वाला है वो सब कंपनी के एंड से, जो भी फ्रेंचाइज के लिए होने वाला है वो मास्टर फ्रेंचाइज के लिए होगा। लेकिन आपको वहां पे बेनिफिट ये है कि एक्सक्लूसिविटी मिलती है, कि आपके अलावा वहां पे दूसरा कोई स्टोर कंपनी भी नहीं ओपन कर सकती, या दूसरा कोई फ्रेंचाइज भी नहीं ओपन कर सकता है। एंड आपको वहां पे मार्केटिंग स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है, क्योंकि आप सारे स्टोर आपके ही है। तो वहां पे विजिबिलिटी वाइज हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग का जो स्ट्रक्चर है, वो काफी फोकस्ड हो जाता है फिर। तो अभी अपार्ट फ्रॉम मास्टर फ्रेंचाइजी, जो राइट। अभी नॉर्मल कियोस्क और कैफे मॉडल चल रहे हैं, उनका ब्रेक इवन टाइम क्या होता है? मतलब मतलब कितने? 15 से 18 महीने की आजू बाजू हम गिन सकते हैं एज अ ब्रेक इवन टाइम जो इन्वेस्टमेंट है। बट दिस इज अ वेरी, हाँ सॉरी, बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने आरओआई की बात नहीं की, मैं ब्रेक ओके। इवन, ब्रेक इवन पीरियड क्या होता है उनका? ब्रेक इवन पीरियड इज अराउंड 6 मंथ्स, 6 मंथ? हाँ, अराउंड तो 6। कितना वर्किंग कैपिटल रखना पड़ता है 6 मंथ आउटलेट रन करने के लिए? आपने जो जो चीजें एक्सपेंसेस बताई है, हाँ, तो वर्किंग कैपिटल कितना रखना पड़ता है उनको?
मतलब जो आपका रेंट एंड वो सब है, मतलब ऐसे तो आप ब्रेक इवन आप अगर बताएंगे तो वो तो फर्स्ट मंथ से भी हो जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो आइडियल मतलब जो आपका स्मूथ रनिंग होना चाहिए कि भाई यहाँ से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अराउंड 6 मंथ्स के बाद आपको प्रॉपर एक रिटर्न आना चालू हो जाता है। तो ब्रेक इवन में अगर बोलूंगा तो वो तो फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड मंथ में ही हो जाता है सारा चीज जो आप इनकर करने वाले हैं एज अ वर्किंग कैपिटल जो टर्न अराउंड चाहिए, वो 1-2 महीने में आप अचीव कर लेते तो आप ये कह रहे हैं कि 1 मंथ में जो है आउटलेट इतना पैसा कमा सकता है कि जो भी एक्सपेंसेस है उसी हो। पैसे करेक्ट से हो। करेक्ट करेक्ट 6 मंथ की बात आप जो कर रहे हो तो वो 6 महीने के बाद जो होगा वो मतलब स्मूथली यानी यस थोड़ा सा प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। करेक्ट, इट विल स्टार्ट जनरेटिंग प्रॉफिट्स एंड इट विल कम व्हेन एज आई टोल्ड यू। मैंने आपको क्वेश्चन आपने भले नहीं पूछा हो, लेकिन मैंने वो अंडरस्टैंड किया आप आर बार पूछ रहे हो। तो 15 से 18 महीने के पीरियड में आप कंप्लीटली आपका इन्वेस्टमेंट रिकवर। तो कैफे मॉडल में जहाँ पे कि जो मैं देख रही हूँ कि 25 to 28 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा, हाँ तो जी। ये भी 18 मंथ में हो जाता है आरओआई रिकवर। हाँ, बिकॉज देखो ऑर्डर भले आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है पर सेल पोटेंशियल भी तो बढ़ा है ना वहाँ पर। तो पीरियड में इतना डिफरेंस नहीं आएगा। इनिशियल जो आप ब्रेक इवन पीरियड बोलोगे उसमें थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो सकता है, जो 1-2 मंथ्स है वो 2-2.5 मंथ्स के आजू बाजू आपका जो मेन जो आपका ये है कि ब्रेक इवन आना चाहिए वो आएगा तभी। क्योंकि इनिशियल थोड़ा एक्सपेंसेस रहेगा, वो कैफे मॉडल में भी आपका आने के लिए क्राउड एंड वेस्टेज और वो सब कंट्रोल होने के लिए थोड़ा वो टाइम ज्यादा लगेगा। अगेन वही मेरा एक्चुअली वो सवाल क्लियर नहीं हो पाया सर कि वर्किंग कैपिटल लोगों को कितना रखना होगा। वर्किंग कैपिटल जितना भी समझो आपका रेंट। और कैफे के लिए डिफरेंट होता है या फिर कैसे रखना होता है? अगेन वर्किंग कैपिटल इज यू वांट टू हैव अ रनवे ऑफ एटलीस्ट 2 मंथ्स। के रनवे ऑफ 2 मंथ्स होना ही चाहिए आपके पास, बी इट अ कैफे बी इट अ स्मॉल मॉडल स्मॉलर मॉडल, पर 2 महीने का आपको वर्किंग कैपिटल रखना है, विच इंक्लूड योर रेंट एंड एवरीथिंग बेसिक। तो अभी आपके ऐसे कितने आउटलेट हैं, जैसे आपने बोला कि 1 मंथ में भी ब्रेक इवन आ जाता है, तो ऐसे कितने आउटलेट है जिन्होंने 1 मंथ में ब्रेक इवन लगा लिया और उनको कुछ भी वर्किंग कैपिटल की नीड नहीं पड़ी? एट्टी ओके, परसेंट ऑफ द आउटलेट्स हैव डन इन द फर्स्ट। फर्स्ट मंथ में उन्होंने ब्रेक इवन यस कवर किया। यस 80% ऑफ द आउटलेट्स आर इन दैट ब्रैकेट। एंड अभी एवरेज टिकट साइज क्या होता है आपका? लाइक वीकडेज में डिफरेंट होता होगा, वीकेंड में, और ये कैफे और कियोस्क के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट होता होगा, तो वो मुझे करेक्ट। एक बार पूरा एक्सप्लेन So करिए। around the average order value is between 230 250 for a basic model, and for a cafe it is between 350 to 400. And on weekends you can expect a 20% rise in both. Around ये 230 का अराउंड समझिए आप 270 to 80 जाता है, और वो अराउंड 450 to 500 के बीच में जाता है। अभी आप कुछ बताना चाहेंगे, लाइक जो लोग न्यूली आना चाहते हैं आपके मार्केट में, वो किस तरीके से वर्क कर सकते हैं? उनको आप थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए कि लाइक वो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। सो टू मेक इट इजी, स्टार्ट तो हमने कर दिया है। उनको खाली यही फोकस करना है कि भाई ब्रांड, एक आप अफिलिएट हो रहे हो एक ब्रांड के साथ, एंड उसके बाद आपका जो जर्नी है वो स्टार्ट जो आप बोल रहे हो वो बहुत इजी है, बिकॉज ऑलरेडी ब्रांड नोन है इन द मार्केट। सारे जो एसओपीज है सब इन प्लेस है, ट्रेनिंग से लेके आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट से लेके सॉफ्टवेयर, सभी चीज आपको इन हैंड मिलने वाली है। आपको सिर्फ फोकस करना है ऑन वंस यू स्काउट द प्लेस वी अप्रूव इट, एंड आपको सेल्स पे फोकस करना है। दैट इज द ओनली पार्ट दैट यू नीड योर इंटरवेंशन टू बी देयर। बाकी तो बैकएंड सारा हमने कर दिया है, इंक्लूडिंग रेसिपीज और फॉलोइंग द ट्रेंड एंड मार्केटिंग से लेके हर एक चीज। तो आइडियली फॉर अ लॉन्गर टर्म व्हेन यू टॉक अबाउट 3 years, you are in a very good space in which your focus is only on sale, and how do I increase it, or how do I improve it. That is the only part that is left with the franchise. तो कोई भी नया भी हो निवेशक या जो भी जिसको इन्वेस्ट करना है और जिसको एक बिजनेस रन करना है, दिस इज द मोस्ट इजी वे टू डू इट, in terms of you are already with someone who has got the basics and everything done, and the back end of the thing is already sorted. तो आपको सिर्फ फोकस एक ही चीज पे करना है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा है, इन्वेस्टमेंट भी लो है। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट प्लेस टू बी इन। मुझे थोड़ा सा ये चीज समझना था कि अभी जो
कैफेज चल रहे हैं या फिर जो कियोस्क मॉडल चल रहा है आपका, राइट। उसमें कितने आउटलेट बंद हुए हैं? कुछ कोविड के टाइम मैंने जो एनालाइज किया है कि कोविड के टाइम आपके कुछ आउटलेट्स बंद हो गए थे, यस यस। अराउंड 70 to 75 आउटलेट्स थे जो बंद हो गए थे। तो वो टाइम, वो सिचुएशन को कैसे आपने मैनेज किया? नहीं, कोविड के टाइम पे अराउंड 30-40 आउटलेट बंद हुए थे। और सारे क्या थे कि जैसे कि समझो लैंडलॉर्ड अगर आपको रेंट में कोई राहत नहीं दे रहा है एंड योर बिजनेस इज शट, मतलब आप समझिए कि 6-8 महीने से आप एक भी बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप रेंट भी भर रहे हो, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इन दैट पीरियड। तो वो एक पीरियड था जिसमें वो एक प्रॉब्लम आया था। बट as I told you in the beginning of the interview that we did, कि तभी ये एक वेव आया था जो हमने काफी स्मूथली मतलब निकल गए उसमें से। एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी केम टू 85 outlets also. At that time there were a lot of franchisees, like the 10 stores थे हमारे कोको एंड बाकी सारे फ्रेंचाइजीज थे। तो तभी एक एक तरह से एज अ कंपनी टू सर्वाइव एक हमारे लिए ऐसा था कि बहुत ज्यादा हमको वेट नहीं था कि भाई हमारे पे प्रेशर नहीं था कि हमको बंद करना है और फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगा। तो वो एक हमारे एक फेज था जो निकल गया, अच्छी तरह से निकला, स्मूथली निकला। एंड उसके बाद जो ग्रोथ आई, वो जो लॉस हुआ ना उसका भी 3 गुना ज्यादा अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो वो पीरियड भी था वो कवर हो गया। द आइडियल थिंग वाज कि वो सर्वाइव करना है बस। हमारा वो था ही नहीं कि भाई इसमें से हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चन था ही नहीं। हम कैसे सर्वाइव करेंगे वही, क्योंकि वो हमको पता था कि टेम्पररी है। खाली यही था कि कितना स्ट्रेच होगा वो हमको पता नहीं है, वी डिड नॉट नो दैट। or again supporting the staff also, because everybody in that period was in a situation where इनकम है नहीं, पर जो बेसिक खर्चे है वो तो करने ही है। तो वो भी हमने काफी प्लान आउट कर ही दिया था। जब इनिशियल लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तब हमने वो सब चीजें, इवन विद द फ्रेंचाइजीज वी डिड नॉट लेवी एनी रॉयल्टी ऑन देम। जो भी स्टोर्स चल रहे थे, क्योंकि काफी बीच बीच में वो स्पर्ट्स में चालू भी करने दे रहे थे एक आध महीना, तभी हमने कोई भी फ्रेंचाइजी को रॉयल्टी नहीं लगाई, जस्ट टू सपोर्ट देम, बिकॉज दैट इज व्हाट आइडियली यू वांट बेसिकली। क्योंकि आज उन्होंने भी पैसे लगाए हैं और मेहनत के पैसे हैं, तो आज उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि कंपनी से कुछ सपोर्ट आ रहा है। इवन दो वी हैड टू इनकर लॉस इन आवर बैलेंस शीट ऑल्सो एट दैट टाइम, पर वो करना ही था। क्योंकि उसके से बेसिकली क्या है कि आपको आगे भी आपको फ्यूचर का देखना है। वो टाइम था, वो निकल गया। अभी आगे की सोच के सोचेंगे तो वो अभी अच्छा भी टाइम आया है, एंड दैट बेसिकली बेयर फ्रूट्स। तो क्या उसके बाद आपने कोई फंड रेज भी किया था? यस, फंड रेज किया है हमने। एक फैमिली एंड फ्रेंड से किया था, एक फर्स्ट इनिशियल रेज आफ्टर कोविड। And once that was over, then we got a investor on board very recently, which was also there in the articles. We secured 20 crore funding. So yeah, it is good for us also. ओके। तो अभी जो चल रहा है, जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका 3 इयर्स कंप्लीट हो गया आपके साथ सक्सेसफुली, तो Right. ऐसे कितने आउटलेट है जिन्होंने अग्रीमेंट को अगेन रिन्यूअल कराया है? So around see it is around 90% मैं बोल सकता हूँ कि जिन्होंने रिन्यू किया है। जितने भी फ्रेंचाइजी है सारे ऑलमोस्ट 90% लोगों ने रिन्यू किया है। and they are all like, for example, Surat has been there with us since like 7 years now, so they have renewed the agreement twice now. So there are these cases also, even Jabalpur. So most of the 90% of the franchises are there with us, which have been since a long time, and 3 years have completed. Yeah, post COVID whatever was opened, they are also all there with us. So that COVID period, if you minus out, then 90% of the people have renewed the agreement, and they are still a part of our family. ओके। तो अभी मुझे फिलहाल ये जानना है कि अभी जो है 99 पेन के खुद के भी आउटलेट्स ओपन कर रहा है और Correct. फ्रेंचाइजी दे रहा है, तो इसका रीजन क्या है? So see, for growth you require two basically engines. Double engine की सरकार बोलते हैं ना, वैसे डबल इंजन हमारे पास भी है, एक फोफो है और एक कोको है। तो हमको भी दोनों ही एक्सपेंड करना है। और आइडियली सी फोफो का एक क्या है कि एक अपॉर्चुनिटी भी देनी है लोगों को,
क्या वो एक इन्वेस्टेबल थिंग में आप इन्वेस्ट करके कमाओ पैसे, और सेकंड क्या है कि हमको भी एज अ कंपनी वी वांट टू ग्रो द नंबर ऑफ आउटलेट्स, तो वी हैव टू बी हैंगिंग ऑन टू बोथ ऑफ देम, कोको भी चाहिए और फोफो भी चाहिए, टू गेट दैट स्टेडी ग्रोथ ऑल्सो, और अराउंड 4 से 5 आउटलेट हर महीने हमको खोलने ही है, तो दैट इज द टारगेट। ब्रांड को हमको जल्दी वी वांट टू accelerate fast and cover lot of cities that we are missing out on, and to cater to those customers also. तो अभी जैसे अभी जैसे बहुत सारे आउटलेट हैं हाँ जी। कि जो कियोस्क मॉडल में है या फिर जो कैफे मॉडल में है, राइट। तो आपके बहुत सारे कंपटीटर भी है मार्केट में, सेम कैटेगरीज में सेम चीजें वो भी ला रहे हैं। तो राइट। आप ऐसी क्या डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं या फिर ऐसा क्या डिफरेंट यूएसपी है आपका कि लोग 99 पैनकेक के पास जाएंगे? तो आइडियली देखो, हमारे पास अभी 8 साल हो गए, हम अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ कंपटीशन, एंड कंपटीशन इज गुड, क्योंकि आज आप जो केटर कर रहे हो जो क्राउड को, वो भी काफी है, मतलब इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत बड़ा है, एंड एक आदमी या एक ब्रांड पूरे मार्केट को नहीं कैप्चर कर सकता है। तो कंपटीशन इन अ वे इज गुड के आपकी कैटेगरी को प्रेजेंस मिलता है, एंड आप काफी टाइम से हो तो आपको वो एडवांटेज मिलता है कि फर्स्ट मूवर, और हमने काफी ब्रांड नेम बना भी लिया है एज 99 पैनकेक्स। अभी पैन इंडिया सबको मालूम है कि 99 पैनकेक्स क्या है, एंड इवन विद कंपटीशन कमिंग इन, that edge is going to be always there with us, and with competition growing it will basically educate people about pancakes, because अभी भी काफी places में pancake क्या है वो अभी भी relate नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमने जो लाया है वर्जन वो वेजिटेरियन वर्जन, एंड दैट ऑल्सो इट्स अ यूरोपियन कॉन्सेप्ट, तो वो वहां पे ज्यादा पॉपुलर, लोगों को खाना है लेकिन वो पता नहीं क्या है वो चीज, एंड बीइंग mostly people are adverse to having vegetarian food, तो वो थोड़ा कॉन्सेप्ट में हमने वो लाके एक बार क्या है कि वो ट्राई किया, और वो एडवांटेज हमारे पास रहेगा ही, वील हैव द एज, आई एम नॉट सेइंग कि हम ही मोनोपोली लेके बैठेंगे, बट कंपटीशन इज नेवर अ कंसर्न फॉर अस, बिकॉज वो एक कैटेगरी को प्रमोट करने वाला तो अभी जो आपका कैफे मॉडल है वो भी प्योर वेज है? है। यस यस यस, बोथ ऑफ देम आर वेज, प्योर तो, वेज। तो अब जैसे आपने भी ऑलरेडी देखा होगा कि मार्केट में जैसे वेल्जन वफल ब्रांड है, हाँ जी। वेल्जन वफल ने पहले लोगों को फ्रेंचाइजी दी और फिर बाद में सारी फ्रेंचाइजी को कोको मॉडल में कर दी। राइट। तो ऐसा कुछ 99 पैनकेक का भी प्लान है आगे चलकर? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि हम चाह ही रहे हैं कि हमको फ्रेंचाइजी बिजनेस भी ग्रो करना है, सो दैट इज नॉट इवन अ थॉट राइट नाउ, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years, वो ऐसा कोई है ही नहीं, एंड अगेन लाइक इट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी व्हाट दे आर बेसिकली agenda is, but we have a very clear and crisp agenda on having to grow franchisee business and making them also profitable and part of the journey with us. अभी जो हमारे आउटलेट्स है वो सारा इंडिया में ही है, तो आउट ऑफ Yes. इंडिया जाने का कोई प्लान है कि आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपांड करना है हमें? है, प्लान है, वी आर we have certain inquiries from Middle East, Dubai, then even Australia, so all those places we have inquiries, and we are exploring them, but it is a slow process, we will not rush into it, क्योंकि अभी इंडिया में भी काफी पोटेंशियल है कि काफी काफी सिटीज है जो हमको कवर करनी है, तो पहले तो फर्स्ट फोकस इज दैट, and obviously along with that we are going to explore opportunities outside the country also. अभी अभी लाइक जब से आप आए हैं तब से और काफी ग्रो हुआ है, बट नेक्स्ट 5 ईयर में 99 पैनकेक्स को आप कहाँ पे स्पेशली लेकर जाना चाहते See, the vision is to have around 400-500 stores for sure after 5 years, तो विजन तो बड़ा ही रखना है, तो ही आप उस तरह भाग पाओगे और उस तरह सोच पाओगे, तो आइडियली है कि 500 स्टोर तो करना ही करना है, लेकिन अभी वो जर्नी में काफी अभी प्रोग्रेस किया है, और आगे भी करेंगे होपफुली। हैं? तो कोई ऐसा सक्सेस स्टोरी जो आपके फ्रेंचाइजी ओनर का हो, या फिर समटाइम्स कोई ऐसा फेलियर स्टोरी भी कि
ऐसा कुछ हुआ है फ्रेंचाइजी ओनर्स के साथ, तो एक बार आप वो एक्सप्लेन करिए प्लीज। फेलियर तो मैं ऐसा कुछ कहूंगा नहीं इन पर्टिकुलर कोई है ऐसा, क्योंकि अभी तक टच वुड एक्सेप्ट फॉर कोविड ऐसा कोई पीरियड ही नहीं आया जिसकी वजह से आप बोल सके कि फ्रेंचाइज ने बंद कर दिया है या कुछ हुआ है ऐसा। सक्सेस स्टोरी में बोलूंगा तो मैं पर्टिकुलरली सारे जितने भी स्टोर्स है मेरे सूरत में या फिर जबलपुर में, या जो भी स्टोर्स बिफोर कोविड भी सर्वाइव कर चुके हैं और आज तक मेरे साथ में है, so they have been along with me since the beginning of my journey also, which is something which I am proud of also कि भाई 7 साल भी हो गए उनको, कंपनी को 8 साल हुए, and they are still there with us and they are also growing with us and even supporting us in every way, you know। तो वो हिसाब से वो एक मैं सक्सेस स्टोरी बोलूंगा कि भाई क्या है कि जो साथ देता है लंबे समय के लिए वो ही टिकता भी है और वो रहता भी है हमारे मेमोरी में। 99 पैनकेक का कुछ अचीवमेंट जो आप एक्सप्लेन करेंगे हमारे जो भी अटेंडीज है। सो अचीवमेंट आने वाला है एंड नवंबर में हम 100 स्टोर क्रॉस कर लेंगे। तो होपफुली दैट विल बी द मेजर वन माइलस्टोन दैट वी विल कवर आफ्टर द कोविड थिंग हैपेंड। तो 100 स्टोर करेंगे और वो सेलिब्रेट करेंगे हम इन अ बिग वे। तो वो एक अच्छा अचीवमेंट रहेगा फॉर अस, एंड दैट इज ऑल्सो एक तरह से हमको एक बूस्ट भी मिलेगा टू अचीव द टारगेट दैट वी हैव सेट। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे माइंड में आया बिकॉज मैंने देखा है बहुत इन्वेस्टर्स का आता है। आपने जैसे राइट। ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि इंटीरियर अगर इन्वेस्टर चाहे तो खुद से कर सकता है, यस। आपका कुछ डिजाइन फिक्स्ड होता होगा कि आप वो यस। डिजाइन ही उनको करना है। करेक्ट करेक्ट। सो मैंने वो बताया था जैसे कि हमारा डिजाइन टीम है ना, वो मेजरमेंट के हिसाब से आपको 3D 2D सारा चीज बना के देता है, एंड अकॉर्डिंगली आपके जो इंटीरियर पर्सन है उनको वर्क करना है। उसके साथ हम उनको वो भी बताते हैं कौन सा मटेरियल यूज करना है, क्या करना है, एंड पीरियोडिकली वो चेक भी होता है कि आज प्रोग्रेस, साइड प्रोग्रेस क्या हुआ। तो एवरी वीक या एवरी 4 डेज डिपेंडिंग ऑन द साइट प्रोग्रेस वर्क हम उनसे रिपोर्ट लेते हैं कि आज ये हुआ अलोंग विद द फोटोग्राफ्स। सो कहीं पे भी वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ गलत हो गया एंड दे फाइंड आउट आफ्टर 20 डेज एंड वो अगेन उनको खर्चा हुआ, वो हमको करना नहीं है। तो इट इज बेसिकली व्हाट वी डू इज स्टेज वाइज हम उनको बताते रहते हैं, गाइडेंस भी देते रहते हैं कि भाई आप ये ऐसा कर सकते हैं। तो वो एक प्रोसेस हम हमारी टीम उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है, प्रोजेक्ट्स। एक एक लास्ट क्वेश्चन है कि अभी जैसे कैफे मॉडल भी आपने लॉन्च किया है, तो यस। सारी चीजें जो है किचन की वो इलेक्ट्रिसिटी पे ही है या फिर आप गैस या गैस भी यूज करते हैं? देर इज नो गैस, इट इज कंप्लीटली ऑन इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, कंप्लीटली देर इज नो गैस। यस, मेरा बिकॉज इसलिए सवाल था क्योंकि मॉल्स वगैरह में जो है फिर वो चिमनी वगैरह का इशू आपको आएगा। राइट राइट राइट। नहीं नहीं, इसमें कुछ भी पूरा इंडक्शन पे है, एंड लाइसेंसिंग में भी हम असिस्ट करते हैं। हमारे पास वो भी एक डिवीजन है जो आपको असिस्ट करेगा, बिकॉज सिटी वाइज अगेन लाइसेंसिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो वो आपको गाइड कर लेंगे कौन सा लाइसेंस आपको क्या करना है। फसाई लाइसेंस तो आपको चाहिए ही चाहिए, दैट इज अ कंपल्शन। अलॉन्ग विद दैट कौन से लाइसेंसेस लगेंगे उसके लिए भी हमारे पास एक वेंडर है, थर्ड पार्टी है, सारी चीजें इन हाउस ही है। तो हम वो भी गाइडेंस दे देते हैं, क्योंकि एज यू सेड कोई नया इन्वेस्टर है जिसको पता ही नहीं है फूड इंडस्ट्री का क्या है, तो वो भी एक हर्डल आता है। प्लस अगेन स्विगी जोमेटो का ऑनबोर्डिंग, तो वो भी हम ही करा देते हैं। बिकॉज अगर आप कराने जाएंगे तो कभी वो 25-26% भी मांगते हैं जो नए लोगों को, बट विथ अस बीइंग अ कंपनी हमने उनको लॉक कर दिया 20 और 21%। तो वो भी एक एडवांटेज मिलता है बाय गोइंग विद अ ब्रांड। ठीक है, सो आई थिंक सारी चीजें कवर्ड है मेरे साइड से। तो यस। अभी हम लोग एक बार क्यूएनए सेक्शन पे आते हैं कि ऑडियंस जो हमारे साथ ऑलरेडी है उनके कुछ क्वेश्चंस है तो। प्लीज प्लीज। सो ऑडियंस आपके साइड से जो भी क्वेश्चंस है आप एक बार मुझे बता दीजिए। हिमांशु, आप एक बार चेक करेंगे, कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। Okay, Pooja. So there is a question. What are the fixed monthly expenses per outlet, and what is the average salary for each employee? So to Like answer the that, yeah. can I answer that or you have another question? Yes, yes, you can answer. All right. So to answer that, when you talk about fixed cost, जो आपका रेंट है, सैलरी है और इलेक्ट्रिसिटी है, और उसके अलावा बाकी के जो कॉस्ट है वो तो बेसिकली आप ऑर्डर करोगे स्टॉक या कुछ, तो वो तो सेल में से ही होने वाला है। तो आइडियली ये तीन चीजें ही है जो रेंट, सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अभी आप सैलरी का पूछेंगे तो एवरेज बिटवीन
से 8 से 12 हजार के बीच में एक सैलरी ब्रैकेट है, जिसमें आपके 2 या 3 जो है वो बेसिक जो बनाने वाले रहते हैं वो, और एक आपको एक आउटलेट मैनेजर लगेगा, वो बिटवीन 12 to 15 thousand का रहेगा, जो स्टॉक इन्वेंट्री चेक करेगा, आपका स्टोर मैनेज करेगा, टाइम सेट करेगा, वो रोस्टर बनाएगा, वो सारी चीज होती है। तो आइडियल ये ब्रैकेट है सैलरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशु। अभी नहीं आया है। यस यस, वेट कर। Okay, Pooja, so there is a question. How many employees should be there in outlet? सो आइडियली फॉर अ बेसिक मॉडल जो है उसके लिए बिटवीन अराउंड 4 to 5 people, बिकॉज देर आर 2 shifts. So in the morning there are around 1 or 2 people, and then the rest of them in the night time. Because ये डेजर्ट बिजनेस है, तो ज्यादा आपका बिजनेस है ना वो इवनिंग और नाइट के टाइम पे ही होने वाला है, तो वहां पे ज्यादा लोग लगेंगे. And for the cafe model, between 6 to 8 people. Again, division will be morning will be less people, and evening will be more people, because your business is again driven by evening sales, since it's a desert brand. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हिमांशु। Okay, so next question is, if an employee leaves suddenly, how is replacement managed? So to answer that, see, that is basically कैसा है कि आप हम लोग ने स्टाफ ट्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया इसके पहले के क्वेश्चन में से, कि 4 से 5 लोग चाहिए. तो इनकेस अगर एक आध चला जाता है, तो देन यू आर कवर्ड विद द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज, एंड यू विल हैव टू स्टार्ट हायरिंग अनदर पर्सन. इन दैट वी डू सपोर्ट. बट इन केस आपके 3-4 लोग चले गए एंड स्टोर इज ऑन द वर्ज ऑफ द शटडाउन, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम बॉम्बे से आपको मैनेज कर सकते हैं, हमारे टीम में से किसी को भेज देते हैं, सो दैट आपका ऑपरेशन हैम्पर ना हो. उसके जो सैलरी कॉस्ट है वो आपको बेयर करना है, एंड दैट सपोर्ट वी डू गिव इन दैट एक्सट्रीम केस. बट एक आध जन चला जाता है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट थ्रू द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ. ओके, थैंक यू देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमांशु। Okay, so next question is, what type of licenses are required and what are its cost? So when we talk about licenses, मैंने जैसे बताया FSSAI लाइसेंस बहुत जरूरी है, और बाकी सारे लाइसेंस डिपेंड करते हैं ऑन विच स्टेट यू आर गोइंग इन. सो अराउंड फसाई लाइसेंस का कॉस्ट इज बिटवीन 12 to 15 thousand, एंड रेस्ट इज योर बोर्ड साइनेज का एक लगता है, जो ग्लो साइन का लाइसेंस लगता है, और एक हेल्थ लाइसेंस लगता है, जो आपकी जो बीएमसी या जो भी सिटी की अथॉरिटी है, म्युनिसिपल अथॉरिटी, उसका एक हेल्थ लाइसेंस लगता है. So now again the cost will depend on which city you are in, but ideally it is in the bracket of 15 to 20,000. And गुमास्ता लगता है इन महाराष्ट्र एटलीस्ट, पर उसका कोई कॉस्ट नहीं है, ऐसे जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो होता है वही है. इट इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट. सो दीज आर द मेजर लाइसेंसेस दैट यू हैव. Certain places you will require a fire license also, but that is very basic, because we are doing everything on induction. We don't have gas as a use in the outlet. तो बेसिक लाइसेंस लगता है, उसके साथ एक फायर एक्सटिंग्विशर लगता है, विच इज नॉट दैट मच ऑफ अ कॉस्ट. वो 1000-2000 का आ जाता है. ओके, सो हेल्थ लाइसेंस कंपलसरी है सारे आउटलेट्स के लिए? हेल्थ इन बॉम्बे तो डेफिनेटली है, लेकिन अगेन उसका कॉस्ट डिपेंड करता है अगेन ऑन एरिया टू एरिया. सो इट विल डिफर, बट आई गिव यू अ प्राइस रेंज बिटवीन 20 to 25,000 के बीच में वो आता है. FSSAI इज 100% कंपल्सरी, बिकॉज वो तो आपको सारे जगह पे लगेगा ही, इन टर्म्स ऑफ ऑनबोर्डिंग ऑल्सो ऑन स्विगी एंड जोमेटो. तो वो एक कंपल्शन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हिमांशु। Okay, so there is a question. Is there is any buyback or resale option available for franchisee? So as I told you, resale and buyback again depends on the situation of what is the franchisee doing. समझो कि अगर उनको कोई कारण से, समझो शायद कंट्री लीव कर रहे हैं या कुछ ऐसा है, और उनको बिजनेस दे देना है, देन ऑन अप्रूवल वी कैन अलाउ दैट. फॉर द टर्म ऑफ द फ्रेंचाइज, जो टर्म है हमारा 3 साल का, उसमें फर्स्ट ईयर तो लॉक इन है, तो 1 साल तो आपको लॉक्ड इन ही रहना है, कुछ भी हो, तो उसमें आप लीव नहीं कर सकते हो. बट उसके बाद जो बायबैक एंड रीसेल का ऑप्शन है, वो अगेन केस टू केस बेसिस पे होगा, पर हम उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या है सिचुएशन एट दैट. अच्छा, अभी मेरा एक सवाल बनता है हाँ. जो आपने जवाब दिया उस पे, सॉरी। Yes. सो अभी जैसे आपने बोला कि 1 ईयर का लॉकिंग पीरियड होता है, हाँ जी. तो मुझे आपने जैसे स्टार्टिंग में मुझे बताया था कि 6 मंथ तो लगता ही है उनको एक स्मूथली चलने के लिए।
बट करेक्ट सम लोकेशंस पे ये हो सकता है कि थोड़ा लेट भी हो। तो राइट। 1 साल तक मान लीजिए फ्रेंचाइजी ओनर अगर लॉस में है तो क्या कंपलसरी है कि उसको 1 साल तक चलाना पड़ेगा, या फिर वो टाइम में आप किस तरीके का सपोर्ट करते हो? नहीं सी, वो 1 साल का थ्रेशोल्ड क्यों रखा है, क्योंकि आज आप ब्रांड चला रहे हो, आप ब्रांड चला रहे हो, तो आप ऑलरेडी वो देख ही रहे हो कि भाई मुझे लॉस नहीं होना चाहिए, और कस्टमर को जो फ्रेंचाइज है उसको भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो वो सारे चीज पैरामीटर्स तो आप पहले ही कर ही रहे हो। अगर ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपको लगता ही नहीं कि मैं 1 साल भी सर्वाइव करूंगा, तो उसका मतलब ही नहीं बनता है ऐसा बिजनेस करने से। नहीं वही। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है आप जो बोल रहे हो, लेकिन इन दैट केस हम लोग कैसा है कि समझो रॉयल्टी वेवर दे देंगे, या फिर मार्केटिंग बूस्ट दे देंगे। जिस तरह से हम उनको असिस्ट कर सकते हैं वो करेंगे ही करेंगे, वो देर इज नो डाउट ऑन दैट। बट 1 ईयर का जो टर्म पीरियड है वो जरूरी क्यों है, क्योंकि आज आपका ब्रांड एसोसिएटेड है उस आउटलेट के साथ। तो कोई भी ब्रांड ऐसे करने नहीं देगा कि आप कोई भी लोकेशन खोलो और फिर बंद भी कर दो। दिस इज नॉट लाइक समथिंग विच यू कैन डू, लाइक 6 महीने में बंद कर दिया, 1 साल में बंद कर दिया, बिकॉज अगेन सी इट इज सेकेंड इन्वेस्टमेंट फॉर। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ब्रांड को आप डिसरिगार्ड कर लो उस केस में। तो जनरली तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इन केस हुआ तो भी हम उसको सपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, गिव देम बूस्टर, एंड अगेन रॉयल्टी वेवर का कर सकते हैं कुछ ना कुछ। तो अगेन जैसे मार्केटिंग तो ऑलरेडी आप कर ही रहे हैं, तो मैं यहाँ पे रॉयल्टी समझू कि आप रॉयल्टी वेव ऑफ कर रहे हैं उसको, ये एक हेल्प मिल नहीं, मार्केटिंग कर ही रहे हैं, लेकिन देर आर अदर वेज ऑल्सो, लाइक फॉर एग्जाम्पल जनरल मार्केटिंग हो गया, वो तो कर ही रहे हैं। बट पर्टिकुलर वो आउटलेट के लिए मार्केटिंग करेंगे, बिकॉज वी हैव अ लॉयल्टी प्रोग्राम ऑल्सो, के रीलो करके हम यूज करते हैं मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, जिससे हम टारगेटेड मार्केटिंग करते हैं फॉर योर आउटलेट ओनली, जिसमें दूसरे आउटलेट का मार्केटिंग नहीं होता है। तो वो पर्टिकुलर चीज हम यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द सेल्स टू दैट पर्टिकुलर आउटलेट ओनली। इस हिसाब से हम थोड़ा एनहांस भी कर सकते हो। ओके, थैंक्स देव। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमांशु। Okay, Pooja. Can I convert my FOFO franchise into FOCO model later if performance is poor? So that honestly, we don't have something like a FOCO right now, but in Bombay we can explore that wherever we have the resources. Because see again, what happens, as I had earlier also said in the conversation, कि समझो कोई अलग सिटी कोई अलग स्टेट में है, जैसे कि यूपी में हो गया या कहीं पे हो गया, जहाँ मेरा ही रीच नहीं है, क्योंकि मैं वहां पे स्टाफ हायर करूँ, एंड इट विल ऑल्सो बिकम डिफिकल्ट फॉर मी टू हैव वन स्टोर which is in some remote area. Again, if it is in Bombay, it is in Hyderabad, where I have my own stores and I can manage the staff over there, that is an option. That is not that it is not an option, but again, it depends on the situation and the place where we are talking about. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हिमांशु। Okay, so next question is, I feel the franchisee fee is quite high. In the desert segment, the fee are usually lower, and many brands don't even charge the renewal fees. Why we are not doing the same? That is something that it depends on brand to brand. So ideally, I would say for us it has been a standard, and we maintain that for we don't want that person just to invest money. He is investing in our brand, and he will be a part of my brand, and he'll be an associated with my brand also. तो वो एक फी उसकी वजह से ही है कि भाई मेरे को एक लॉन्जिटिविटी चाहिए, और उनको एक पैसा कमा के भी देना है, तो मेरे को एक वो अश्योरेंस चाहिए। दिस इज लाइक मैरिज, आई डोंट वांट कि भाई डिवोर्स हो जाए 1 साल, इसलिए वो फीस वैसे रखी है कि जो सीरियस एंड इंटरेस्टेड पीपल है वही आए एंड एसोसिएट होए हमारे साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हिमांशु। Are there any software charges? यस, देयर आर सॉफ्टवेयर चार्जेस, सो वो अराउंड 35,000 अ ईयर है, और जिसमें आपका सारा चीज आ जाता है, रिश्ता, एलएमएस और ऑल दैट, लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर अदर सर्विसेज आर आल्सो देयर, लाइक रिव्यू मैनेजमेंट भी होता है, रिलो भी होता है, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया है, जो एक रॉयल्टी मैनेजमेंट है। तो वो सारा चीज बंडल में आ जाता है आपको एक साथ। ठीक है, आई होप गॉट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमांशु। Okay, so next question is, the franchise agreement usually includes a lock-in period, notice period, and termination term. So before investing, what happen if you decide to exit early or face consistent losses? I think I've answered that. There is a 1 year lock-in, there is a 3 year term agreement, and
we also have a deposit that we kind of take from the franchise, which is 1 lakh rupees. So in case he wants to, shut the store within 1 year, then his deposit is forfeited in that case, and he can then shut the store. Otherwise, there are no other restrictions as such. And if it is post 1 year, then he will get back his deposit. But in case, like a lot of questions, and even Pooja had asked me this, that if the company wants to take over the store, in that case, we do have that option. And if that is possible, then maybe we can take that store and we continue running it. But 1 year is a time period that we have in which you cannot shut the store. And there is, I mean, we don't have other restrictions apart from forfeiture of the deposit. Okay, I think there is no more questions. Already सारी चीज clear है, सारे points clear है. Right. So once again, thank you so much, Dev sir, for joining us today. Thank you so much for hosting me. It was a pleasure talking to you. Thank you so much. Thank, Okay. Thank you so much, attendees, for joining us today. Okay, sir. Bye bye. thank you. Bye. Yeah, yeah.